everyone. Welcome to StudyGist. Today we will discuss about the tissues. The topics which will be covered in today's class are division of labor, the plant tissues and the animal tissues, a brief idea about these two types of tissues, different types of plant tissues, meristematic tissues as well as permanent tissues, and among the permanent tissues only one simple type of permanent tissue we will discuss today, that is parenchyma. So before we start today's discussion, let's tell something about us. As you can see, this is our YouTube channel, StudyGist Academy. Do subscribe it. This is our Facebook page, StudyGist Academy. Like our Facebook page. Join our Telegram channel, that is StudyGist School 7 to 10. Do join this channel, because in this channel you will get every kind of notification, every kind of study related updates about the live classes as well. Like our Instagram page, and you can join our WhatsApp Academy too. For more updates you can visit our website www.studygist.in. Our app of StudyGist is also available now. You can directly go to the Google Play Store and in free you can download it. Do download, and believe me, it's very easy to use. So this is how our YouTube page looks like. Do subscribe it and don't forget to hit the bell icon so that to get all kinds of notification instantly. And this is all about our Facebook page. It looks like that. Now we'll move on to our class of discussion today. So as this is the first topic, division of labor. What is mean by division? Division of labor. The word labor means work. Division of labor means how the work is distributed. जो सेल में जो काम है, हर एक तरह का जो काम है, वो कैसे हर एक ऑर्गेन्स में, हर एक ऑर्गेन सिस्टम्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसी को कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर. So all living organisms are made up of cells. So before we understand about the cells, the concept of tissues, we have to understand what is it. Initial idea starts from cell. What is cell? Cell is the basic unit of our life. Unit of life is called cell, and a group of cell, it forms a tissue. As the tissue contains numerous number of cells, so it's very easier for a tissue to conduct the function. So tissue के पास बहुत cell है, तो it has the mastery how it can distribute the work to different types of cells. But the difference lies between the division of labor between the unicellular organism as well as the division of labor in the multicellular organism. Unicellular organism में क्या होता है? देखो, एक ही सेल से बनता है बॉडी. So unicellular organism, the whole body contains one cell. In that case, what is the problem? Problem is that किस लाइफ में जो भी लाइफ एक्टिविटीज़ है, बेसिक लाइफ एक्टिविटीज़ है, सबको सब लाइफ एक्टिविटीज़ करने के लिए क्या करना होता है? एक सेल के अंदर जो जो मशीनरीज है उसी को यूज़ करके सारा फंक्शंस करना पड़ता है. इसीलिए what happens if in one cell, one machinery in the particular cell gets disturbed, get harmed somehow due to many reasons, कुछ भी रीज़न हो सकता है इसके पीछे, तो क्या होता है उससे सेल का जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है. ठीक है. सो क्योंकि उसी मशीनरी को यूज़ करके मूवमेंट भी करता है, इनटेक ऑफ फूड, रेस्पिरेशन भी करता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है. एक ही मतलब सेम पार्ट ऑफ द बॉडी इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शंस. vast functions are regulated by a single part of the body. तो it becomes a pressure if one part is damaged. क्योंकि एक ही पार्ट बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि एक पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो सेल का पूरा जो फंक्शनिंग है वो सारा कुछ डैमेज हो जाएगा. अगर सारा कुछ डैमेज हो जाएगा देन द प्रॉपर डिविजन ऑफ लेबर नहीं रहेगा.
एंड विदाउट द डिविजन ऑफ लेबर, विदाउट इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क अच्छे से नहीं हो पाएगा. ओके, नाउ what happens in multicellular organism, as the name suggests, multicellular organism, just a minute. Okay. So देखो, multicellular organism, multi मतलब क्या है? Multi means many, right? So इसमें एक नहीं, बहुत सारा सेल है. बहुत सारा सेल है मतलब बहुत सारा फंक्शंस ये परफॉर्म कर सकता है. बहुत सारा फंक्शंस तो यूनिसेलुलर भी परफॉर्म कर रहा था. सो व्हाट इज डिफरेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज different kinds of cell, the workload, the labor is being properly distributed among various cells. So in this case unicellular के जैसा प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें. Most of these cells are, because these are specialized to carry the functions, and most efficiently they can perform the functions as well. These functions are taken up by different groups of cells. So in this way we can say that in case of multicellular organism, the division of labor is properly originated, properly organized, right? यहाँ पर आप इस पिक्चर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी है. यहाँ पर पैनक्रियस है, यहाँ पर लीवर है, देयर इज पोर्टल वेन, देयर इज ब्रेन, मीन्स नर्व सेल. नर्व सेल को और क्या हम बोलते हैं? न्यूरॉन भी बोलते हैं, राइट? सो एडिपोस टिश्यू मीन्स फैट, इट इज मेड अप ऑफ फैट सेल्स. तो यहाँ पर एक एक काम के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन, एक एक काम के लिए एक एक सेल है. तो यहाँ पर काम और डिवीजन ऑफ लेबर बहुत आसान हो जाता है. बहुत ही अच्छी तरीके से काम जो है वो क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? वेल डिस्ट्रीब्यूटेड. नेक्स्ट, so in this slide what we can see how the plants and animal body is made up of different types of tissues. Plant and animal, ये देख रहे हो प्लांट और ये एनिमल, दोनों ही क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है. स्टिल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल और द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल और टाइप्स ऑफ सेल्स और टिश्यूज और सेल्स इनसाइड द टिश्यूज आर नॉट सेम, दिस आर डिफरेंट. सो कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होगा जिसकी वजह से द टाइप्स ऑफ टिश्यूज in plants as well as in animals are totally different from each other. क्या देखते हैं? First is animals and plants are two different type of organism. Main इसमें difference है, different type of organism and they perform different types of function. देखो plants जो है वो autotrophic है. Auto means क्या है? Auto means own और even self, खुद से. और ट्रॉफी वर्ड आता है ट्रॉफी से, जिसका मतलब है न्यूट्रिशन, राइट? सेल्फ न्यूट्रिशन अरेंज कर सकता है. इसका मतलब दे हैव द स्पेशल पावर ऑफ कंडक्टिंग अ प्रोसेस. एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस? दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करता है? ये अपना जो न्यूट्रिशन है, अपना जो खाना है, न्यूट्रिशन, फ्रॉम वेयर वी गेट न्यूट्रिशन, फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. सो द मेन थिंग इज दे हैव द मास्टरी, प्लांट्स हैव द मास्टरी, द स्पेशल पावर हाउ दे कैन synthesize their own food, means they have the quality. And for that फूड के लिए इधर उधर जो भटकना होता है, सर्च करना होता है, वो नहीं करना पड़ता है. सो इफ they don't have to arrange food for them, then what's the special benefit? Special benefit है कि ये देखो, they do not have to move from one place to another place in search of food. फूड के लिए नहीं जाना पड़ता है, इसीलिए these are the stationary or fixed organism. Fixed organism मतलब it performs locomotion. It performs movement but not locomotion. Movement तो ये कर रहा है. Without movement, how it can performing, how it is being involved in the process of photosynthesis. But photosynthesis में involve होने का मतलब ये नहीं है कि इसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है. So if they are not going, so the need of energy, they are also consuming more energy.
they are consuming more energy because they are not wasting their energy for going from one place to another place, right? So in that case, most of the plant tissues जो है, most of the plant tissues are very supportive in nature. They can support, they can provide the proper mechanical and structural strength. देखो, जो ऑर्गेनिज्म को मूव नहीं करना होता है वो प्रोटेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि most of the cells in the plant tissue is made up of dead cells. डेड सेल से बना होता है, इसलिए स्ट्रक्चरल मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है. मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड. ऑन द अदर हैंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एनिमल्स जो है वो फोटोट्रॉपिक नहीं है, मतलब अपने लिए अपना जो न्यूट्रिशन है वो खुद जुगाड़ नहीं कर सकता है. तो दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर. ओके, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो डिपेंडेंट. हियर फॉर फूड और फॉर न्यूट्रिशन dependency comes, dependency for food. Okay, food के लिए they are dependent. So from on whom they are dependent? जो खाना बना सकते हैं उसी पे ना डिपेंड करेगा. So the heterotrophic organisms like us, the human, all other animals, most of the animals, almost all kinds of animals are heterotrophic in nature for food. They are dependent on the autotrophic organisms for getting their food. इसमें क्या होता है, डेफिनेटली अगर किसी पे डिपेंड कर रहे हो, सो यू डेफिनेटली हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो दे हैव टू मूव इन सर्च ऑफ फूड, मेटिंग, रिप्रोडक्शन, फाइंड शेल्टर के लिए. सो डेफिनेटली दे आर कंज्यूमिंग मोर एनर्जी, दे नीड मोर एनर्जी. ओके, और एनिमल टिश्यूज में जो मैक्सिमम सेल्स है वो लिविंग है, डेड सेल्स नहीं है. सो इसी वजह से ये जो डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन द ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फॉर द स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स. राइट, सो हियर अ क्विक लुक आफ्टर ऑफ दिस प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. देख लेते हैं क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस है. प्लांट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डेड टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ बोथ, बट मोर ऑफ द लिविंग टिश्यूज जो है वो इसमें डेड टिश्यू से ज़्यादा होते हैं. प्लांट्स मूव नहीं करता है तो कम एनर्जी चाहिए, ठीक है. सो लेस मेंटेनेंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वेयर एज इन केस ऑफ एनिमल्स मोर मेंटेनेंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड. In case of plant tissue, both meristematic and permanent tissue, the tissue differentiation is present, whereas in animal tissue, no tissue differentiation. Meristematic and permanent tissue will discuss further in details. Briefly, for understanding this point, I just can tell you that meristematic tissue have the dividing power. They divide, and permanent tissues, जब पूरा डिविजन खत्म हो जाता है उसके बाद परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, डिफरेंशिएशन. एक एक टाइप का जो सेल है, एक एक टाइप का सेल एक एक ग्रुप बना के एक एक टिश्यू बना लेता है, ठीक है. वेयर एज इन केस ऑफ एनिमल टिश्यू में जो है कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है. वेयर एज इन प्लांट टिश्यू द ऑर्गेनाइजेशन, द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इनसाइड द टिश्यू सिंपल क्यों है, क्योंकि जाना नहीं पड़ रहा है कहीं पे, सारा जो मशीनरीज है वो प्रेजेंट है, काम जो है वो खुद ही बना सकता है, खाना मानो खुद ही बना सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए. इट इज़ इंडिपेंडेंट, राइट. वेयर इज इन एनिमल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स. लास्टली, प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. डिवाइडिंग कैपेसिटी है, डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड करता है, प्लांट टिश्यू डिवाइड करता है, इसलिए जब तक जिंदा रहता है ऑलमोस्ट तब तक ये प्लांट डिवाइड करता रहता है, और थ्रू डिविजन इट ग्रोज एंड प्रॉपर्ली डिफरेंशिएटेड एंड अरेंज्ड. ओके, एनिमल टिश्यू में क्या होता है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी में जब ये पहुंच जाता है, इट डजंट undergo any kind of growth, doesn't attain any kind of growth, and so no further development occurs. Okay, next here is the chart. Here all kinds of plant tissues are arranged here. Meristematic, main two types, meristematic tissues and permanent tissue. Meristematic tissues are this tissue is made up of those cells which are dividing in
नेचर, ऑलराइट। तो परमानेंट टिश्यूज जो है ये डिवाइडिंग है, परमानेंट टिश्यूज आर नॉन डिवाइडिंग। ओके, फिर जो ये एपिकल टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सॉरी, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें 3 मेरिस्टेम होता है, 3 तरह का मेरिस्टेम देखा जाता है, एक एक एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। आई विल डिस्कस everything about this. Permanent tissues are of 2 types, simple and complex. Now the simple permanent tissue is differentiated into 3 types of tissues: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Now parenchyma is present in 2 forms basically, erenchyma and chlorenchyma. Collenchyma में कोई डिफिशन नहीं है, अकेला ही है, and sclerenchyma is present, may be present in the form of fibers as well as in the form of sclerites. और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है इसमें 2 डिवीजन है, जाइलम और फ्लोएम। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे सब। सो मेरिस्टेमेटिक स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स divide continuously and help in increasing the length and girth of the plant. Length तो हम लोग जानते हैं, लंबाई, and girth is breadth. Okay, so meristematic tissue मैंने पहले ही कहा कि it has a dividing power, dividing capacity. So dividing capacity की मदद से ये क्या करता है, लेंथ में एक प्लांट को, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ओके। सो एक प्लांट जो है ये तो सिर्फ लेंथ में नहीं बढ़ता है, ब्रेथ में भी बढ़ता है, गर्थ में भी बढ़ता है। तो ये जो टिश्यू है, ये जो मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम इज दैट पार्ट वेयर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट। ओके, सो ये बेसिक फीचर्स क्या है इसका, देख लेते हैं बेसिक क्या फीचर्स है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेल्स इनसाइड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज। लेट मी ड्रॉ दिस। ओके, बहुत तरह का आउटलाइन होता है इसका, ये बेसिक हम एक हेक्सागोनल आउटलाइन बना रहे हैं। हम जानते हैं कि एक सेल में जो है मेन 2 पार्ट है, एक है न्यूक्लियस और दूसरा है साइटोप्लाज्म। तो ये एक मान लो एक टिश्यू, एक पार्ट ऑफ टिश्यू है, ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। इनसाइड में ये जो है ये न्यूक्लियस है, लिख देती हूँ मैं, एंड these parts, this part, entire part of the cell except the nucleus is filled with a jelly-like, thick jelly-like substance. This is known as cytoplasm. Alright, तो अब देखो बाकी फीचर्स देखते हैं क्या होता है इसमें। सेल्स में भी स्फेरिकल भी होता है, स्फेरिकल, ओवल शेप, पॉलीगोनल। दिस आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन हेक्सागोनल, दिस इज अ पॉलीगोनल शेप्ड सेल। रेक्टेंगुलर, 4 साइड भी हो सकता है सेल का। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। ये देखो सेल्स, दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं। इंटरसेलुलर मीन्स द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 2 सेल्स, दिस इज नॉट प्रेजेंट। तो कॉम्पैक्टली अरेंज है क्योंकि इसमें एक सेल के साथ दूसरे सेल के बीच में जो गैप है, कोई गैप प्रेजेंट नहीं है। ईच मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन्स डेंस और abundant cytoplasm and a large nucleus. I have already drawn nucleus and cytoplasm is present. Our meristematic cells contain few vacuoles or no vacuoles. कुछ vacuoles, कुछ सेल में vacuoles होता है, कुछ में नहीं होता है. So these tissues are growth tissues, क्योंकि डिवाइड करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, तो डेफिनेटली दीज आर ग्रोथ टिश्यूज एंड आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट्स। आई टोल्ड यू कि मेरिस्टेम वो पार्ट है जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मीन डिवाइडिंग, द सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग, दो सेल्स आर प्रेजेंट। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है कहाँ पर देखा जाएगा, जहाँ पर ग्रोथ होता है प्लांट का, द पार्ट ऑफ द प्लांट्स विच कैन ग्रो, विच हैव द growing capacity either by length or by girth. Okay, अब देखते हैं कि according to their position of the meristem, these are divided into 3 types: apical, lateral
इंटरकैलरी। तो पहले आते हैं एपिकल मेरिस्टेम की तरफ। दीज आर सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये देखो, ये एक प्लांट है, एक सैपलिंग है, जहाँ पर ये एक ग्रोइंग पार्ट है। तो ग्रोइंग पार्ट में जो है वो ये एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होता है, ये जो प्लांट है ये लेंथ में बढ़ता है, ओके। एंड दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द एपिसेस ऑफ द लीव्स। ये जो लीफ का जो पार्ट है, लीफ का जो एपिकल पार्ट है, एपिकल मतलब टॉप पार्ट, टॉप मोस्ट पार्ट, जहाँ से बढ़ेगा वहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है। अब आता है सेकेंड टाइप, लैटरल। लैटरल मीन्स साइड, लैटरल वर्ड इट मीन्स साइड। सो दीज आर फाउंड बीनीथ द बार्क कॉल्ड द कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो बेसिकली बार्क का जो अंदर है उस पार्ट में, और वास्क्यूलर बंडल मतलब मूवमेंट, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। जितना जितना चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही हम लोग उतनी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। दे ऑकर इन लेयर्स, एक लेयर में नहीं होता है, सेवरल लेयर, दे आर प्रेजेंट इन सेवरल लेयर्स। एंड कैम्बियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू। कैम्बियम इज द मेन टिश्यू or one of the most important example of meristematic tissue. It is present almost every kinds of meristems. हर एक तरह का जो मेरिस्टेम होता है उसमें ये कैम्बियम प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये कैम्बियम में ऐसा सेल्स प्रेजेंट रहता है जो सेल्स हेल्प करता है डिवाइड करने में। सो कैम्बियम इज द रीजन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन थिकनेस। सो ये एपिकल मेरिस्टेम जो है उसमें एक प्लांट लेंथ में बढ़ता है। ये देखो लेंथ में बढ़ रहा है। ये जो पिक्चर है इसमें दिखाया जा रहा है कि एक सैपलिंग कैसे उससे थोड़ा बड़ा, यहाँ से थोड़ा बड़ा, यहाँ से थोड़ा काफ़ी बड़ा हो गया ये। तो बड़ा जब हो रहा है, इट्स नॉट ओनली गेटिंग इट्स लेंथ, इट्स गेटिंग इट्स ब्रेथ एज वेल। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। Intercalary, to understand the intercalary meristem you have to understand what is in what does it mean. तो देख लेते हैं क्या है internode. Basically you have to understand about internode, ठीक है। This is a plant suppose and this is the first leaf. तो ये जो joint है, this part is called node, और ये मान लो यहाँ से एक दूसरा ब्रांच शुरू है, मैं यहाँ पर लीफ ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज द सेकेंड नोड, सो दिस इज अनदर नोड। तो ये जो पार्ट है एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटर नोड, ओके। सो इंटर नोड जो पार्ट है वो पार्ट में ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये प्रेजेंट रहता है। So these are located at the base of the leaves or the internode. Internode, I told you internode. So ये internodal elongation में help करता है. So example, the stems of the grasses and other monocots. Such tissues also occur below the nodes. Mainly internodal elongation में ये intercalary meristem help करता है. Next one, what are the basic functions of meristematic tissue? हम लोग discuss कर ही चुके हैं. So एक बार देख लेते हैं क्विकली। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्ट्स एज अ पेटेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यूज आर डेवलप्ड। दे हैव द डिवाइडिंग पावर। सो अगर ये डिवाइडिंग पावर इसमें है तो ये एक पेटेंट टिश्यू है, जहाँ से पेटेंट टिश्यू मतलब क्या है, पेटेंट जहाँ से शुरू होता है, कोई भी चीज़ जब जहाँ से शुरू होता है पेटेंट। तो पेटेंट टिश्यू ये क्यों है, क्योंकि यहाँ से ही दूसरा जो सेल्स है वो बनता है। अदर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द dividing ability of the dividing activity of the meristematic tissue. These tissues take part in growth by the formation of new cells. Okay, discuss कर चुके हैं हम। With the help of meristem, plants continue to produce new leaves. Meristem है, उसमें dividing cells हैं. These are involved in dividing, in division. So it will produce new leaves, new branches, new roots, fruits here as well. The place of injury in plants is healed up by the formation of new cells by the meristem. Due to any kind of damage, any kind of injury, it may be a pathogenic infection, it may be any other cause, man-made cause, any kind of cause, natural disaster, anything can happen. For that, suppose in a plant
a part of plant tissue is damaged. So for that it cannot perform its assigned functions, specific particular assigned functions it cannot perform because of the absence of those cells or those tissue of that region. So in that case, as the meristematic tissue has the dividing power, so they can heal up. हील करके वो जो मेरिस्टम है, मेरिस्टम की मदद से इंजरी जो है वो हिल अप हो जाएगा और जो सेल जैसे था, जैसा पार्ट जैसे पहले था, इट विल बी रिटर्न इन दैट पोजिशन एंड कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन. द प्लांट शूट्स लॉन्च एंड बेंड बाय विंड फ्लो में. मान लो विंड फ्लो हो रहा है, ये प्लांट है, विंड आ रहा है, बहुत विंड फ्लो हो रहा है, तब क्या होगा, तब ये जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ द मेरिस्टेम मीन्स एपिकल मेरिस्टेम, सपोज इट इज डैमेज्ड, सो इन दैट केस इट वोंट बी लाइक दैट कि एपिकल पार्ट जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये प्लांट जो है वो डेथ की तरफ बढ़ जाएगा. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज apart from the apical meristem it has other meristems also, so those meristem will not stop dividing. Okay, so this is the position where properly the position of apical meristem, intercalary meristem and lateral meristems are shown. Apical meristem brings about the elongation of the root and the stem. मैंने कहा था कि apical meristem जो है वो stem और root के टिप में present रहता है, तो ये लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है. दिस इज कॉल्ड द हाइट और लेंथ, द ग्रोथ ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लांट और द हाइट ऑफ द प्लांट इज नोन एज द प्राइमरी ग्रोथ. ओके, नेक्स्ट आता है लैटरल मेरिस्टेम की तरफ. लैटरल मेरिस्टेम दे हेल्प टू इंक्रीज द प्लांट इन डायमीटर, गर्थ. दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ. और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो इंटरनोडल जो रीजन है उसको, उसका जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने में इट हेल्प्स. ओके, नाउ कम्स टू द परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज विच आर द बेसिकली प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मीन्स द परमानेंट टिश्यू, इसका पहले, एकदम पहले इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है. परमानेंट टिश्यूज डू नॉट एग्जिस्ट इनिशियली. पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रहता है, फिर इट अंडरगोज सेवरल डिविजन्स और सेवरल डिविजन के बाद जो है वो हमें परमानेंट टिश्यूज मिलते हैं. द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच द सेल्स डिराइव फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे टेक अप द परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन. ओके, शेप, साइज एंड फंक्शन. दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मतलब है, ये जो वर्ड है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि जब ये, मान लो ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इज अंडरगोइंग डिविजन, 1 से 2 बनाया, अगेन इट इज डिवाइडिंग, इन दिस वे इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग. और डिवाइड करते करते जब मान लो इसका टारगेट है 1 से 64 तक पहुंचना, सो व्हेन this one cell with its meristematic power, with its meristematic capability, it is attaining its adequate size and reaching to this 64 number, then it will try to settle down. That means it indicates it has reached its towards its maturity. जब ये maturity में पहुंच जाएगा तब ये differentiate करेगा कि ये 64 cells जो है वो किस तरह का सेल है, किस तरह का सेल कैसा कैसा ग्रुप बना के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, सो इन दिस वे द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म द परमानेंट टिश्यूज. मीन्स द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टू मेक द परमानेंट टिश्यू एंड मेक देम एक्टिव. तो डिफरेंस क्या है? सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर स्मॉल, स्फेरिकल, undifferentiated. undifferentiated क्यों कह रहे हैं? क्योंकि these are ongoing, these are the ongoing process of division. So ongoing process जब है तब definitely ये well differentiated नहीं है. Whereas by the division of meristematic tissue, permanent tissue is formed. That is why this is well differentiated tissue. Meristematic tissue, they have dense cytoplasm and vacuoles almost absent होता है. Whereas in permanent tissue, the large central vacuoles are present in living cells, living permanent cells.
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रेगुलर ग्रोथ एंड डिविजन ऑफ सेल होता है. नॉर्मल सेल्स डू नॉट डिवाइड, क्योंकि एक जगह पर वो पहुंच गया है. इट हैज़ एक्वायर्ड सर्टन अमाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ इट हैज़ बिकम मैच्योर, सो इट वोंट अंडरगो फर्दर डिविजन. और क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर में जो सेल्स प्रेजेंट है, दोज आर डिवाइडिंग कंटिन्यूसली, सो दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. whereas in case of permanent tissue, the cells involved inside the permanent tissue, वहाँ पर slow rate of metabolism देखा जाता है. सो ये है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू का एक साथ दो पिक्चर. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, एज वेल एज जो लैटरल मेरिस्टेम है, ये कैसे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अलग अलग तरह का जो पार्ट है वहाँ पर फंक्शन प्ले करता है. और ये परमानेंट टिश्यू जो है वो फर्दर डिविजन नहीं करता, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक से ही बना है. ओके, तो अब परमानेंट टिश्यू में जो है वो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स है. आज हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंडर में एक जो फर्स्ट टिश्यू है जो कि पैरेन्काइमा टिश्यू, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू? Permanent tissues are those tissues which do not perform any kind of division, and those are formed as a dividing result of meristematic tissue. Meristematic cell divide होके permanent cell और उसके बाद differentiation के बाद permanent tissue बनाता है. तो इसमें क्या difference है कि इसमें अब फिर से दो तरह हो जाता है, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स हम लोग बाद में आएंगे. आज देखते हैं सिंपल क्या है. सिंपल ये है कि एक टिश्यू में मान लो एक ही तरह का एक जो टिश्यू है, टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल. सो एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल हैं उसका सबका फंक्शन, नेचर, ये सब सेम है. तब हम लोग उसे कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू. मीन्स द सेल्स which are present in the simple permanent tissue are structurally and functionally similar, or they are made up of same type of cells. Okay, so first जो है वो है parenchyma tissue. So parenchyma tissue is made up of parenchyma cell. If we break the term parenchyma, it shows like para means beside and enchyma means infilling. All right, so it forms the bulk of the plant body. मतलब plant body में maximum percentage में ये parenchyma tissue present रहता है. Okay, the cells of the parenchyma tissue are rounded or isodiametric. ये है parenchyma tissue का एक पिक्चर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये एक पार्ट है, ये parenchyma tissue का एक पार्ट है, जो कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप्स नहीं, एक ही टाइप का बहुत सारा सेल मिलके ये टिश्यू बना हुआ है. इसमें आप लोग देख सकते हैं एक टर्म लिखा है ऑलमोस्ट राउंडेड. शेप जो है हाँ राउंडेड ही है. और आइसोडायमेट्रिक. आइसो मीन्स क्या है? आइसो मीन्स सेम. ओके, डायमेट्रिक टर्म आता है डायमीटर से. सो यहाँ पर क्या देख रहे हो, अगर हम ये सेल मान लो ये सेल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से चारों तरफ अगर हम लोग इसका डायमीटर कैलकुलेट करें तो ये ऑलमोस्ट सेम होगा. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आइसोडायमेट्रिक. और ये सेल जो है ये ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कभी कभी इलोंगेटेड हो सकता है. एक ओवल शेप्ड एक सेल को अगर हम दोनों तरफ से प्रेशराइज करें तो क्या हो जाएगा, वो इलोंगेटेड शेप दिखाएगा. सो इलोंगेटेड शेप इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, ये शेप भी जो है इट इज ऑल्सो फाउंड इन पैरेन्काइमा टिश्यू. द सेल वॉल इज थिन and encloses a dense cytoplasm which contains a small nucleus and surrounds a large central vacuole. ये जो है यहाँ का जो इस सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल बहुत थिन होता है because there is no deposition of any agent, right? कोई भी एजेंट नहीं है जहाँ पर जो इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, ये डिपॉजिट होने के वजह से नहीं हो रहा है. डिपोजिशन से ये और ज़्यादा थिक होगा. क्योंकि कोई डिपोजिशन नहीं है, सो द सेल वॉल इज थिनर सेल वॉल. एंड
इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि पैरेन्काइमा सेल्स आर द हैव द लिविंग प्रोटोप्लाज्म. कोई भी सेल, आइदर वन सेल इज लिविंग और डेड, इट इज डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म वो है, वो जेली लाइक थिक सब्सटेंस है जो एक सेल के अंदर उसका लिविंग होना या नॉन लिविंग होना इसको डिफाइन करता है, इसको एस्टैब्लिश करता है. So क्योंकि this parenchyma cells are full of living protoplasm, so we can say that this parenchyma cells inside the parenchyma simple permanent tissue, these are living in nature. और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर abundant intercellular space है. Intercellular space और abundant, it means the parenchyma cells, these are loosely packed. हम लोग देख सकते हैं कि ये इस टिश्यू में बहुत सारे सेल हैं. इस सेल के अंदर जो है दिस इज द इंटरसेलुलर स्पेस इन द पैरेन्काइमा. ऑलराइट, सो इंटरसेलुलर स्पेस है, स्पेस दिख रहा है, दैट मीन्स hence it's proved that these cells are not very tightly packed. If these are tightly packed, there will not be any chance for the presence of intercellular place between this, right? ओके, सो ऑकरेंस क्या है, कहाँ पर रहता है? पैरेन्काइमा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट बॉडीज, स्टेम, रूट, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स. सो बेसिकली प्लांट्स का जो सॉफ्ट पार्ट्स होता है, सॉफ्ट पार्ट्स, इन दो सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट द पैरेन्काइमा टिश्यूज आर एबंडेंट, सच एज कॉर्टेक्स ऑफ रूट्स, ग्राउंड टिश्यूज ऑफ स्टेम, लीफ इज अ वेरी सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट, राइट? सो लीफ का जो मेसोफिल टिश्यू है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है. इट्स ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पीथ, मेडुलरी रेस, पैकिंग टिश्यूज इन जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम, फ्लोएम, दीज आर नॉट सिंपल परमानेंट टिश्यू, दीज आर कॉम्प्लेक्स. सो यहाँ पर भी रहता है प्रेजेंट. ओके, फंक्शन क्या करता है? पैरेन्काइमा सर्व्स एज पैकिंग टिश्यू. पैकिंग, व्हाट इज पैकिंग? पैकिंग मीन्स दोज, पैकिंग टिश्यूज मीन्स दोज टिश्यूज विच आर used to fill the spaces. आपने पहले ही देखा कि यहाँ पर जो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है वो लूजली, वो इंटरसेलुलर स्पेस है क्योंकि ये लूजली पैक्ड है. और आप लोगों ने ये भी देखा कि ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू प्लांट का मैक्सिमम जो पार्ट है उसमें प्रेजेंट रहता है. इसका मतलब ये पैकिंग का काम करता है. जहाँ भी भरना होता है, स्पेस फील करना होता है, दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन दोज अदर टिश्यूज टू मेंटेन द शेप एंड द फर्मनेस. पैकिंग, हम लोग पैकिंग मटेरियल्स आर यूज्ड, तभी यूज होता है पैकिंग मटेरियल्स जब हम लोगों को कोई भी चीज़ को प्रॉपरली शेप देना है. तो टू गिव प्रॉपर शेप and to maintain this firmness, basically this parenchyma tissues have immense role. Due to the turgidity property, parenchyma acts as the primary support to the stem of the herbaceous plant. Herbaceous plant means the herbs, very soft plants, saplings. So वहाँ पर क्या होता है? Due to turgidity property, osmotic property, parenchyma primary support की तरह काम करता है in case of herbaceous plants. So main function, what is the main function of it? To store. It has the vacuole, so it can store and assimilate food. Parenchyma serves as also the food storage tissue, like in starch, and parenchyma of the cortex of the potato tuber. Now, some other functions, like it also helps in the transport of materials through cell wall, through the cells or cell walls of the parenchyma cells. One more important thing is, two more important terms, basically this chlorenchyma and arenchyma. So what is it? Chlorenchyma means parenchyma cell containing chlorophyll. What happens? In some cases, some parenchyma cells, they contain chloroplast too. So अगर वो chloroplast carry कर सकता है, then definitely it can perform photosynthesis. So in that case, within the parenchyma tissues or the parenchyma tissues which contain parenchyma cells inside the parenchyma tissue which can contain chloroplast, those parenchyma tissues are specialized and they are called chlorenchyma. और कहाँ पर present रहता है? For example, mesophyll leaves, mesophyll tissues of the leaves. Or in case of hydrophytes,
जो वाटर प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स लाइक लोटस, लाइक वाटर हाइसिंथ, हाइड्रिला, ये सब जो प्लांट्स है इसमें क्या रहता है, ये पानी के अंदर क्यों रह पाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज. सो यहाँ पर लार्ज एयर कैविटीज रहता है. दीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू गिव द बायंसी टू द प्लांट. तो क्योंकि इसमें एयर कैविटीज रहता है, दैट्स वाई such specific specialized type of parenchyma is known as the aerenchyma. From air this term comes. This is the picture where this is the nucleus. So parenchyma, this is the nucleus and this is the cytoplasm. All right. So thank you for today. Everything we have discussed, go through it. And we'll meet you in the next class. Till then, bye bye, take care.